Hello students, very good morning to all of you. Students of class 3rd, students, how are you all? I hope all are feeling well. Am I right, students? Okay, that's good. Now it's time to start our English worksheet. So for that, students, you may take out your English course book and all the exercises have been completed of the previous chapter, chapter 6, Meet Mr. Crab. Hope you all have completed also. All the exercises are completed in your book and as well as in notebook. Yes? Okay. That is good things. Okay, students, so see there. Today I am here with the next chapter, which is the poem. Okay? Which is the poem. And it is the last chapter in your volume first book. After this, we have to just move on the volume second. So let's start to complete it. Firstly, we will understood. First of all, we will understand and then we will do the exercises. Poem, and this poem name is Little by Little. What's the name of this poem? Little by Little. And it's about which thing or about what? We have to just learn it. So start to see from the let's begin. There is given, how tall are you this year? Taller than you were last year, and so much taller than when you were a little baby, isn't it? Everything in nature is growing bit by bit. Read on to learn how a little acorn makes this discovery. Okay? Have you understood? समझ में आया किसी को? Okay, so let me explain you. Let's begin. How tall are you this year? आप इस ईयर कितने टॉल हो गए हैं, कितने बड़े हो गए हैं? टॉलर देन यू वर लास्ट ईयर. क्या आपकी आप जो टॉल थे लास्ट ईयर, आप जितने टॉल थे, क्या इस ईयर आप उससे ज़्यादा टॉलर हो गए हैं? एंड सो मच टॉलर, और बहुत ही ज़्यादा टॉलर हो गए हैं देन व्हेन यू वर अ लिटिल बेबी, जब आप एक छोटे से बेबी थे. इजंट इट? एम आई राइट? मीन्स हाउ टॉल यू आर दिस ईयर. इस ईयर आप कितने बड़े हो गए हैं, कितने लंबे हो गए हैं, कितने टॉल हो गए हैं? टॉलर देन व्हेन यू वर लास्ट ईयर. क्या लास्ट ईयर से भी ज़्यादा टॉलर आप हो गए हैं? एंड सो मच टॉलर, अब बहुत ही ज़्यादा टॉलर हो गए हैं जब आप एक लिटिल बेबी थे. येस स्टूडेंट्स, वी नो वेरी वेल, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, पीपल एंड ईच एंड एवरीथिंग जस्ट मूव व्हाट अहेड. क्या करते हैं? लिटिल बाय लिटिल, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, we just grow, the things grow. Okay? Growing करते हैं ना? Everything in nature is growing bit by bit. जो भी चीज़ें इस नेचर में हैं, इस प्रकृति में हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं एवरी डे एंड एवरीथिंग वो ग्रोइंग हो रहे हैं, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं. Read on to learn how a little acorn makes this discovery. Read on to learn. We have to read about this poem, okay, and learn. And then we will learn. हम सीखेंगे, समझेंगे. How a little acorn, कि एक जो little acorn है, acorn means oak tree. Have you listened oak tree? Oak tree का नेम सुना है आप लोगों ने? ये द सीड ऑफ एन ओक ट्री. ये जो एकॉर्न है वो सीड है ओक ट्री की. कैसे एक ओक ट्री का जो सीड है वो कैसे
ग्रोइंग करता है और अपनी डिस्कवरी को कैसे क्रिएट करता है, उसकी ग्रोइंग की जो स्टेप है वो किस तरह की होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस पोएम वी हैव टू रीड एंड लर्न अबाउट दिस acorn, the seed of an oak tree. Start to read from reading and comprehension. There's a poem. चलिए पहले poem read कर लेते हैं. Let's read. Little by little an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little each day I grieve, little by little it seeped the dew. It is a stanza first. And the second stanza, downward it sent out a thread-like root, up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest pride. It was a stanzas 2. So before going to explain this poem, you can see students in this side you have some words with their meaning. So till that, if you won't understand about these words, word meanings, I think that will be very difficult to understand this poem explanation for you all. तो सबसे पहले हम लोग जो हार्ड वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग को देख लेते हैं. यहाँ पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं. यहाँ पे ओक ट्री की पिक्चर है एंड आफ्टर सम टाइम ये जो ट्री है, माइटी ओक जो ट्री है, वो लास्ट टाइम एट लास्ट में कैसी हो गई है ये भी आप देख सकते हैं. सो सी देयर वर्ड. फर्स्ट वर्ड acorn, to which we are talking in this poem, acorn. So the meaning of acorn is the seed of an oak tree. ठीक है, ओक ट्री की जो सीड होती है उसको कहते हैं यहाँ पे acorn. नेक्स्ट mossy. नेक्स्ट mossy means covered with moss. You can also say or call that a small green flowerless plant. mossy किसे कहते हैं? एक small green, एक स्मॉल छोटा सा ग्रीन मीन्स ग्रीन कलर. फ्लावरलेस प्लांट, फ्लावरलेस प्लांट होता है मीन्स उस प्लांट में आपको फ्लावर्स नहीं मिलेंगे, ओनली देयर विल बी सम सीड्स. दैट इज कॉल्ड मॉसी बेड. नेक्स्ट आपका है सिप्ड. नेक्स्ट व्हाट्स द नेक्स्ट वर्ड? सिप्ड. दैट मीन्स ड्रैंक इन लिटिल सिप. ड्रैंक इन लिटिल सिप. सिप मीन्स क्या होता है? टेल मी अबाउट द मीनिंग ऑफ सिप. मीन्स इसको घून बोलते हैं. नेक्स्ट आपका है सूट. नेक्स्ट वर्ड सूट एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज अ न्यू स्टेम और ब्रांच. शाखा जिसको बोलते हैं. नेक्स्ट आपका वर्ड है स्प्लेंडर. दैट मीन्स वेरी थिन, पतली चीज जिसको बोलते हैं. नेक्स्ट आपका है माइटी. मीन्स वेरी बिग, अ ग्रेट. दैट इज कॉल्ड माइटी. Okay, so start to understand this poem. Little by little an acorn said. Little by little एक जो सीड है ओक ट्री की सीड, वो क्या होता है? Little by little as it slowly sank in its mossy bed. वो पहले वो छोटी सी सीड रहती है ओक ट्री की और वो स्लोली क्या होता है? एक स्मॉल ग्रीन फ्लावरलेस प्लांट में क्या होती है? चेंज होती है. देखिए यहाँ पे सीड है ना, ओक की सीड है. ठीक है, और इससे क्या हो रहे हैं? इससे ये सारे फ्लावरलेस प्लांट जो हैं वो बाहर की तरफ आ रहे हैं. ठीक है ना, ये आपकी हो जाएगी मॉसी बेड वो बना रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो वी वर रीडिंग दैट जो एकोन सीड की बीज है, ओक ट्री की सीड है. Okay, after some time that is covering with a small green flowerless plant, जो कि जिसकी पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं. बट ये जो प्लांट है वो स्टार्टिंग में बहुत ही स्मॉल होगी ना, एंड आफ्टर सम टाइम दैट इज इम्प्रूविंग, ग्रोइंग. देखिए इनके प्लांट जो है वो भी बिगर हो रहे हैं. नेक्स्ट है आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे एंड दिस प्लांट इज सेइंग इन इट वर्ड्स आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे. मैं क्या कर रहा हूँ? इम्प्रूव कर रहा हूँ. ठीक है, ग्रो कर रहा हूँ एवरी डे. डे बाई डे मैं ग्रो कर रहा हूँ.
हिडन डीप इन द अर्थ अवे, और जो मेरी ब्रांचेज हैं वो कहाँ हैं, वो हिडन हुई हैं, छिपी हुई हैं, डीप मीन्स अंदर की तरफ, इन द अर्थ अवे मीन्स अर्थ में, मीन्स फ्लोर की तरफ, हिडन हिडन क्या है, बहुत डीपली हिडन हुई हैं उनकी ब्रांचेस। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रीव, और ये जो ब्रांचेस हैं, डीप हिडन ब्रांचेस जो हैं वो लिटिल बाय लिटिल मीन्स स्लोली स्लोली क्या हो रही है, ग्रीव हो रही हैं, वो ग्रो कर रही हैं, बढ़ रही हैं। लिटिल बाय लिटिल इट सीप्स द ड्यू, और क्या होता है, सीप की मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया है ना, सीप मीन्स क्या होता है, ड्रैंक इन लिटिल सीप्स, ठीक है। ड्रीप मीन्स बताइए क्या होता है, ओस, जिसको ओस की बूंदे कहते हैं। और जब ये क्या होता है, जब सीप जो है वो जब डीप में कन्वर्ट होकर के इन सारे ब्रांचेस पे, फ्लावरलेस प्लांट पे जब वो क्या होता है, फॉलन होता है, तो ये और फास्टली क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये ओक ट्री, ये आप लोग का था स्टेंजा फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेंजा आपका है, डाउनवर्ड इट सेंड आउट अ थ्रेड लाइक रूट, डाउनवर्ड, और नीचे से क्या हो रहा है, इट सेंड आउट मीन्स इस जो प्लांट है उसने सेंड आउट किया, मीन्स एक छोटे से थ्रेड मीन्स धागे की तरह, लाइक रूट, रूट मीन्स एक जड़ के शक्ल में और जड़ की तरह एक धागे को ऊपर की तरफ सेंड आउट किया, ओके, निकाला। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में बहुत ही स्मॉल स्मॉल रूट्स आए होंगे, ठीक है, इसके बाद ये ऐसे बिगर होते थे, बहुत ही बिग ट्री हो गया है, जो कि एट लास्ट फाइनली माइटी ओक में कन्वर्ट हुआ है। Up in the air sprang a tiny shoot, a new stem or branch. Up in the air means ऊपर की तरफ एक छोटे से ब्रांच, एक छोटी सी ब्रांच जो है वो आउटसाइड की तरफ, बाहर की तरफ आ रही है, जैसे यहाँ से आ रही है साइड से। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, और दिन पे दिन, दिन प्रतिदिन, एंड ईयर बाय ईयर क्या हो रहे हैं, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, और इस तरह से उन सारे ब्रांचेस से जो लीव्स हैं, उनकी पत्तियां हैं, वो भी स्लोली स्लोली अब अपीयर होने लगी हैं, दिखाई देने लगी हैं। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, और जो ब्रांचेस की लीव्स हैं वो क्या हो रहा है, वो बिल्कुल थिन हैं, और वो ब्रांचेस जो हैं वो बहुत ही फास्टली फार हो रही हैं, मीन्स बहुत दूर तक बढ़ रही हैं, वाइड, और बहुत ही चौड़ी और घनी हो रही हैं, जैसे कि आपका ट्री है। टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड, एंड एट लास्ट ये जो आपका ओक ट्री है वो एट लास्ट बहुत ही बिग हो जाता है, वेरी बिग हो जाता है, और बिग होने के बाद फॉरेस्ट की जो प्राइड है, मीन्स जंगल का जो इसको गौरव कहते हैं, उसको ये बढ़ा रही है, ये सारी ओक ट्रीज। ओके स्टूडेंट, सो इट वॉज द ग्रोइंग स्टेप्स अबाउट दिस ओक ट्री। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आप इस पोएम को लर्न करेंगे, learn this poem well, and also write down with the pictures and try to understand at home, and write down all the word meanings with their meanings in your notebook. Okay, so next day we will do the exercises. So till then students, now thank you, have a good day.